हैदराबाद के होटल ताज कृष्णा में आज आंध्रा बैंक की जानिब से 121वें इजलास मुनक़िद हुआ। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के इस इजलास में वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि बैंक भी हुकूमत का एक हिस्सा है, इसलिए बैंक भी आवाम के लिए जवाबदेह है। वज़ीर आला ने इस मौके पर क्रेडिट स्टेट प्लान 2013-14 भी जारी किया। एन किरण कुमार रेड्डी ने यह भी कहा कि हर शहरी को आधार कार्ड लाजमी है और हर आधार कार्ड रखने वाला बैंक अकाउंट खुलवा ले ताकि हुकूमत की जानिब से दी जा रही सब्सिडी से वो इस्तेफादा कर सके। इस मौके पर बी.के. मोहंती, चीफ सेक्रेटरी हुकूमत आंध्र प्रदेश, R.N. जनरल सेक्रेटरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नारायण, CGM निब्बाट के अलावा बैंक के दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। इनके अलावा वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी के हमरा रियासती वज़ीरा रघुवीरा रेड्डी और अनम राम नारायण रेड्डी भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। कांग्रेस की तर्जुमान डॉक्टर तुलसी रेड्डी ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की तायीद में उस वक्त कहती है जब वो इख्तिदार में नहीं होती, जब वो इख्तिदार में होती है तो तेलंगाना की मुखालिफत करती है। तुलसी रेड्डी ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी को अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है। NDA के दौरे इख्तिदार में जितने घोटाले हुए वो मुल्क की तारीख में शायद ही कभी हुए हों। बीजेपी ने कारगिल के ताबूतों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने नागम जनार्दन रेड्डी जो कल बीजेपी में शामिल हुए उन पर तनकीद करते हुए कहा कि नागम जनार्दन रेड्डी तन्हा कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने मुख्तलिफ पार्टियों की तायीद हासिल करते हुए इलेक्शन जीता था। अगर बीजेपी में हिम्मत है तो नागम जनार्दन रेड्डी को इलेक्शन में जितवा कर बताए। మూగబోయిన నాగం నగర ఇంకొక సైడ్ ఏమో రాష్ట్రంలో రేకులు రాలిన కమలం. ఆ మీటింగ్లో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు తెలంగాణ గురించి కొన్ని వ్యాఖ్యలు ప్రస్తావించడం జరిగింది. అసలు తెలంగాణకు సంబంధించి బీజేపీ స్టాండ్ ఏమంటే అధికారంలో ఉన్నప్పుడు నై, అధికారంలో లేనప్పుడు సై. అది బీజేపీ తెలంగాణ పట్ల బీజేపీ విధానం. అధికారంలో లేనప్పుడు సై, అధికారంలో ఉన్నప్పుడు నై. ఎందుకు ఆ మాట అంటున్నానంటే 1996లో వాళ్ళు అధికారంలో లేరు. అప్పుడేమన్నారు, కాకినాడలో ఒకటి సమావేశం జరిపి రాష్ట్ర కార్యవర్గంలో ఒక ఓటు రెండు రాష్ట్రాలు అనే తీర్మానం చేశారు. అప్పుడు అధికారంలో లేరు కాబట్టి. దాని తర్వాత 1999 నుంచి 2004 వరకు వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నారు కేంద్రంలో. ఆ సమయంలో తెలంగాణకు నై అన్నారు. ఆ సందర్భంగా కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ వ్యాఖ్యలు ఏమంటే 2000 సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 20 తారీఖున విద్యాసాగర్ రావు గారు అప్పుడు డిప్యూటీ హోమ్ మినిస్టర్ కెపాసిటీలో ఒక మీటింగ్ పెట్టారు. ఆ ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం ఉద్యమించిన తెలంగాణకు ఇప్పటి తెలంగాణకు చాలా తేడా ఉంది. ప్రత్యేక రాష్ట్ర యోచన స్థానిక ప్రజల్లో లేకుండా కేవలం రాజకీయ నాయకులే హడావిడి చేయడం నెలలు నిండిన గర్భవతికి బదులుగా మంత్రసాని పుట్టినప్పుడు పడినట్టుగా ఉందని. ఇది 2000 సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 20 తారీఖున విద్యాసాగర్ రావు గారు, బీజేపీ నాయకులు విద్యాసాగర్ రావు గారు ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్. మరుసటి రోజు 2001 అద్వానీ గారు హోమ్ మినిస్టర్ కెపాసిటీలో ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు హైదరాబాద్లో. దీంట్లో ఏమి ఇచ్చాడంటే
చిన్న రాష్ట్రాల ఏర్పాటుకు బీజేపీ సుముఖంగానే ఉన్నప్పటికీ తెలంగాణ విషయంలో ఇది వర్తించదు. ఉత్తరాదిలో జార్ఖండ్, ఉత్తరాంచల్, ఛత్తీస్గఢ్లను చిన్న రాష్ట్రాలుగా ఆమోదించడంలో ప్రజల మద్దతు ఉంది. అయితే ఇక్కడ ఆ పరిస్థితి లేదు. అలాగే ఆయా ప్రాంతాలు రాష్ట్ర రాజధానులకు దూరంగా ఉన్నాయని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అయిన హైదరాబాద్ తెలంగాణలోనే ఉన్న విషయాన్ని గుర్తించాలని అద్వానీ గారు అన్నారు. ఇది 2000 సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 21న అద్వానీ గారి స్టేట్మెంట్. ఈ రెండు సందర్భాల్లో వాళ్ళ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు, తర్వాత 2002 ఏప్రిల్ 1వ తారీఖున అద్వానీ గారు హోమ్ మినిస్టర్ కెపాసిటీలో I have had the matter examined. The government of India is of the view that regional disparities in economic development can be tackled through planning and efficient use of available resources. The government therefore do not propose creation of a separate state of Telangana. ఇది తెలంగాణ ఇచ్చే క్వశ్చనే లేదు అని అద్వానీ గారు లిఖితపూర్వకంగా నరేంద్ర గారికి తెలంగాణ విషయంలో రాసినటువంటి లెటర్. ఇప్పుడు वजारत से बरतरफ किए गए वजीर शहर DL रविंदर ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा है कि उन्हें बरतरफ करने की वजूहात आवाम को बताना होगा। वजीर आला N किरण कुमार रेड्डी से आवाम ये जानना चाहेगी कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर उन्हें बर्खास्त किया गया। वो खुद भी अभी तक समझ नहीं पाए। रियासती असम्बली में वाक़ CLP दफ्तर से DL रविंदर को मुखातिब होने की इजाज़त नहीं दी गई। इन्होंने इस्तफसार किया कि जमहूरियत में क्या इस तरह का रवैया इस्तेमाल किया जाता है। वाज़े DL रविंदर ने बरतरफ होने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। इन्होंने मजीद कहा कि राजीव युवा किरनालू प्रोग्राम गैर मुनज़्ज़म तरीक़े पर किया गया है, जिसकी वजह से इन्होंने वज़ीर आला N किरण कुमार रेड्डी पर तनकीद की, जिसके बायस इन्हें वजारत से बरतरफ किया गया। DL रविंदर ने यह भी कहा है कि वज़ीर आला के रवैये की वजह से वो पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके थे, लेकिन इनका इस्तीफ़ा नामंजूर करके अब इनको बरतरफ कर दिया गया। ये उनकी बेइज्जती के मुतरादिफ है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के सदर चंद्रशेखर राव के फर्जंद श्री सिल्ला के रुकन असम्बली KTR ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा है कि रियासती हुकूमत सिर्फ आंध्रा और रायलसीमा की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। सरकारी मुलाजिमतों में 6 टन GOS पर बिल्कुलिया तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत हुकूमत मुलाजिमतें फराहम करती हैं, लेकिन कमीशन में भी 6 टन GOS पर अमल नहीं हो रहा है। रामाराव ने मजीद कहा है कि अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए सिर्फ TRS जद्दोजहद कर रही है। इन्होंने UPA के साथ साथ BJP पर तनकीद करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी अलहदा रियासत के लिए पार्लियामेंट में चुप्पी साधे हुए है। बारिश के पानी को महफूज करने के लिए अजीमतर बल्दिया हैदराबाद बिल्कुल संजीदा दिखाई दे रही है। आज शहर के मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन और डिप्टी मेयर ने जोनल कमिश्नर खैरताबाद में एक इजलास मुनक़िद करते हुए कारपोरेटर्स को हार्वेस्ट बारिश के पानी स्कीम को रूबा अमल लाने की तरगीब दी और इस स्कीम पर तफसीली तबादला ख्याल किया। ज़ेर ज़मीन पानी की कमी से शहर हैदराबाद के बोरवेल नाकाम हो रहे हैं, इसलिए पानी को महफूज करने के लिए बल्दिया शहर में अवामी मकामात पर गढ़ों की तामीर के जरिए पानी महफूज करना चाहती है। इस सिलसिले में 2013-2014 में 10,000 गड्ढे बनाने का GHMC मंसूबा रखती है। अगर किसी खानगी जायदाद पर यह गड्ढे बनाने के लिए कोई तैयार हो तो GHMC 50% खर्च बर्दाश्त करेगी। मेयर बल्दिया अजीमतर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन ने शहरियान हैदराबाद से ख्वाहिश की है कि वो सरसब्ज बनाने और पानी की किल्लत से महफूज रहने के लिए इस स्कीम को कामयाब बनाने की अपील की है। కొన్ని డిజైన్స్ మన ఇళ్లలో ఎట్లా తీసుకోవచ్చు అని ఇప్పుడు ఇది ఇంజక్షన్ ఎలా అంటారండి? ఇంతలో చెప్పాను, హార్ట్ రాడ్ ఉన్న దగ్గర మనకు బోర్లు పడుతుంటాయి, కానీ పైన పెద్దడితో అంటే మొరం పోర్షన్ తక్కువ ఉంటుంది.
అలాంటి దగ్గర మనకి కన్సర్న్స్ కంటే మళ్ళీ respected colony associations, colony federations, my media friends who are all present over here. This particular campaign for rainwater harvesting in Hyderabad, what I feel is the need of the day, and we all have to stand together for this. Right now, the crisis that we are facing in Hyderabad with respect to the groundwater levels that is depleting day by day, and many people are suffering due to this. The Water Works is doing its best to provide the best drinking water possible to the city. But what I feel is, as a first citizen of the Hyderabad, and as we all are here as the citizens of Hyderabad, it is our moral responsibility that we should work together towards this particular campaign of rainwater harvesting. This is the need of the day, and we have to be together. I welcome all the dedicated colony associations and colony federations who have taken out time and come over here to promote this campaign. Sir, I welcome you, all of you, and I promise that let's do this together. And there was a campaign that I was planning for a long time. That definitely I wanted to visit each and every colony, or sit down with the colony federations, which I just now discussed with the Zonal Commissioner, Mr. Ronaldo sir. So as soon as this campaign is over, we'll definitely sit down with the colony federations, we'll discuss all the basic issues that are there, and we'll go ahead with this. But definitely, sir, the one thing that will definitely make me proud, sitting with that one particular colony association or with one particular colony federation, will be feeling proud that this colony has contributed a lot towards the groundwater levels. This federation has contributed a lot towards the campaign that was run by GHMC for increasing the groundwater level. I request all of your support for this particular campaign so that we can make a Hyderabad a better place to live, a great place to live, and may the future or the next generations that are coming remember this particular campaign and follow it. Thank you all. So what I feel this is the campaign that has been running on for a long time. But this is the first time that a civic body is contributing towards constructing of a storm for a rain harvesting bed. Previously, the colony associations used to construct it on their behalf. But this time we have promoted this because we know the condition of the groundwater level. It is fast depleting. To raise it and to promote rainwater harvesting in every section of the society. This time we have started a campaign in which for apartments GHMC will contribute 50% of the total cost. For welfare associations, GHMC will contribute 70% of the total cost. So with this kind of promotion, definitely the colony associations or the colony federations will come up and utilize these kind of offers. This was going on for a long time. People were doing it on their own. This time we have taken a responsibility of contributing towards it. So I feel that this campaign will be a major success. We have kick-started the campaign from Central Zone and we'll be continuing it. Our main target is achieving 10,000 rainwater harvesting pit this year in the rainy season. ओके अभी ये GHMC और ये वाटर्स दोनों के एक लाख को ऊपर पैसे घंटे 100 करोड़ की वसूल कर रहे हैं। ये जो है अब ये जो लेटेस्ट जियो के बाद जब आया था तो वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट वाज मैंडेटरी। Our main target is before we were granting permissions including rain water works, जहाँ पे ये नहीं था, जो अपार्टमेंट्स में नहीं थे, जो घरों में ये नहीं थे, जो कॉलोनीज में नहीं थे, वहाँ पे प्रमोट करने के लिए ये कैंपेन ये कैंपेन नए जो कंस्ट्रक्शन है they are already has rain water harvesting. This is for the old ones who doesn't have that. ठीक है? रियासत में क़ब्ल अज़ वक्त मानसून दाखिल हो गया है। पीर की शब शहर हैदराबाद में मौसलाधार बारिश हुई। इस बारिश की सबब झुलसा देने वाली गर्मी से शहरियान हैदराबाद ने राहत की सांस ली है। शहर हैदराबाद के अलावा दीगर अजला से भी बारिश की इत्तलात हैं। महकमा मौसमियात के बामुजिब आइंदा 2-3 दिन में मानसून में मजीद पेशरफ्त हो सकती है। इत्तला के मुताबिक रायलसीमा के इलाके में मुसलसल बारिश हो रही है। ज़राए के बामुजिब आइंदा 48 घंटों के दौरान साहिली आंध्रा और रायलसीमा के कई मकामात पर औसत तशदीद बारिश होगी। तेलंगाना के चंद मकामात पर भी इसका इम्कान है।
सबको मायूस करके नफीसा खान उर्फ जिया खान ने खुदकुशी कर ली। इत्तला के बामूजिब 25 साल जिया खान मुंबई में पिछले 3 साल से अपनी मां राबिया खान के हमरा सागर संगीत बिल्डिंग की पहली मंजिल में मुकीम थी, मगर इस वाक़े के वक्त वो घर में अकेली थी। जिया खान के खुदकुशी की कड़वी सच्चाई से बॉलीवुड में मायूसी के बादल छा गए हैं। जो शुरुआती इत्तला मौसूल हुई है, इसके मुताबिक जिया खान ने अपने ही घर में फांसी लेकर खुदकुशी की है। इस वाक़े के फौरी बाद उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। ताहम पुलिस को अभी तक कोई सुराग या कोई खुदकुश नोट नहीं मिला है और न ही वजह का पता चला है। 11:15 के करीब में जो है उसका बॉडी जो है उनका जो घर है सागर संगीत का जो पहला माले में बेडरूम में उनकी मां ने 11:15 के करीब जो है हैंगिंग कंडीशन में उनको वहाँ पे पाया और उसके बाद जो है उसके बॉडी को यहाँ पे लाया गया है। पोस्टमार्टम किया जाएगा, ADR रजिस्टर हुआ है, तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कॉज ऑफ डेथ क्या है और बाकी जो है तपास में पता चलेगा। IPL स्पॉट फिक्सिंग की तहकीकात करने वाली मुंबई क्राइम ब्रांच ने इंकशाफ किया कि अदाकारा विंदु दारा सिंह ने पंजाब के कप्तान एडम गिलक्रिस्ट और गोनी को मैच फिक्स करने के लिए तरगीब देने की कोशिश की। जराये के बामुजिब बताया गया है कि कुछ महीने कबल विंदु ने गिलक्रिस्ट और गोनी को एक इलेक्ट्रॉनिक अशिया के इफ्तिताही तकरीब में मदऊ करके उनसे करीब होने की कोशिश की ताकि उन्हें मुस्तकबिल में इस्तेमाल कर सके। बॉलीवुड अदाकार जिसे स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में गिरफ्तार कर लिया गया है, समझा जाता है कि 1990 में सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग में भी मुलविस है। क्राइम ब्रांच हैदराबाद ने मासूम बेरोजगारों को नौकरी का झांसा देकर उनसे रकम ऐंठने वाले 2 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एम वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि कुचिपुड़ी डैनियल प्रवीण पीटर्स और सदाकार प्रमोद ने मिलकर एक एजेंसी कायम की और लोगों को मुल्क और मुल्क से बाहर रोजगारी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगारों से 80 लाख रुपए जमा कर लिए और उन्हें जाली टिकट और वीजा फराहम करते हुए धोखा दिया। 70 to 80 इनोसेंट ये स्टूडेंट्स को लोग डूब कर एम्प्लॉयमेंट देते बाहर आउट ऑफ कंट्री में, साइप्रस, दूसरा कंट्रीज ग्रीस, वो 4-5 कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट देता बोल के पैसे लिए नियरली दे हैव कलेक्टेड नियर टू 70 to 80 लाख कलेक्ट करे। थोड़े जनों को वापस करे, थोड़े जनों को थोड़ा पैसे भी वो लोग का ट्रांजेक्शन में है और पूरा वेरीफाई करें हम लोग कि इस सिलसिला में ये लोग एक्चुअली दोनों को पब्लिक कस्टडी में लिए प्रोड्यूस करें, फिर पुलिस कस्टडी में लेके पूरा पूछताछ करेंगे ये स्कैम के बारे में। ये लोग क्या है बंजारा रोड नंबर 10 में ऑफिस खोले ओवरसीज इमिग्रेशन है तो एम्प्लॉयमेंट के लिए बोल के, और दे आर नॉट रजिस्टर्ड पीपल नहीं है। ये लोग ऐसा चीट कर रहे। एक कॉम्प्लेंट में स्पेशल टीम वेंकटगिरी इंस्पेक्टर और टीम में लोग CCS टीम DCP साहब का इंस्ट्रक्शन एडिशनल साहब वर्कआउट करें, लोगों का अपहरण करें। अब 14 पासपोर्ट्स और डुप्लीकेट वीजा तो डॉक्यूमेंट सीज करें, लैपटॉप इंक्वायरी में है। आप लोग से विनती है ये क्या है तो ये हुएवर अपना गवर्नमेंट का अपना स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शंस है। फॉरेन कंट्रीज गए तो ऑर्गेनाइज सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन है, सो वो लोगों से अप्रोच होना, और जिसको भी गवर्नमेंट का वो लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का वो रहना पड़ता, वो परमिशन है, सो इन लोगों से। और दूसरा 45 डेज का वेजेस मिनिमम 20,000 से ज़्यादा नहीं कलेक्ट करना, और कोई डाउट है तो इंडियन एम्बेसी में तुरंत चेक कर लेना पड़ता। इसका वेबसाइट भी है। ये लोग ऐसा विद अनरजिस्टर्ड और पब्लिक के पास जाके फंसना नहीं है। फंसने के बाद ये लोग का एक्चुअली ये लोग का पैसे का गया और ट्रेनिंग और टाइम भी हुआ, ऐसा कोई भी डूब नहीं होना बोल के हम आपके तरफ से पब्लिक में विनती कर रहे हैं। जो भी किसी को डाउट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये पूरा वेबसाइट है, इसमें है, पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑथराइज्ड एजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑथराइज पर्सन वो लोग होता है ये कर सकते हैं। और पासपोर्ट्स और ये डॉक्यूमेंट्स किसी दूसरा आदमी को दे तो मिसयूज होने का भी चांसेस है। कहाँ के रहने? एक तो हैदराबाद का ये साइबराबाद लिमिट्स में है, अत्तापुर एरिया का। दूसरा ये गुजरात का है, नेटिव ऑफ बड़ौदा का है। नहीं, ये तो फर्स्ट टाइम अपने पास रिकॉर्ड का है। ये लोग वेल क्वालिफाइड है और ये रोड नंबर 10 में ऑफिस
शहर के इलाका हबशीगुड़ा में साबिक मुलाजिम ने अपनी मालिकाइन को लूट लिया। तफसीलात के मुताबिक हुसैन नामी शख्स माधव राव के पास काम किया करता था। फिर कुछ दिन पहले उसने मुलाजिमत तर्क कर दी और अपना कारोबार शुरू करना चाहा, लेकिन इसके पास कारोबार के लिए रकम नहीं थी। उसने अपने साबिक मालिकिन के घर पहुंचकर कहा कि उसकी शादी हो गई है और वो इसे अपनी खुशी में शामिल करना चाहता है। ये कहकर उसने अपने साबिका मालिकिन को मिठाई खिलाई, जिसके साथ ही मालिक मकान माधव राव और इनकी अहलिया तुलसी बेहोश हो गए और इसके बाद हुसैन ने इनके घर का कीमती सामान लेकर राह फरार इख्तियार की। हबशीगुड़ा पुलिस ने हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह के और मामला साइबराबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में भी पेश आए। पुलिस ने 3 अफराद अनिल कुमार, रेड्डी, शिवा कृष्णा और दयानंद को गिरफ्तार कर लिया है।